गुड मॉर्निंग साथियों, मैं बसंत कुमार पांडे। आज आप मेरे साथ हैं सेल के एक ऐसे ऑर्गेनल को पढ़ने के लिए जो एक्चुअल में पूरे संसार में एनर्जी का मेन वजह है, मेन रीज़न है। यू नो, ईच एंड एवरी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर any kind of work, for every kind of work. So the most important requirement of the living world is energy. Not only us, each and every living organism require energy. Now from where these energies are coming? You know, in our childhood we studied भोजन से ऊर्जा मिलती है. That means we are getting our energy from food. Okay, but how? The question comes, how you are getting food from energy? Nowadays, if you are in class 9th, you are going to study the cellular organelle. But if you are in class 10, you have to understand that what the food we have eaten is actually got digested in our digestive system, got absorbed by the blood in the blood circulatory system. Now via blood it approaches each and every cell. Then inside the cell that food is broken down. ध्यान से समझेंगे, हम जो भी खाते हैं वह भोजन सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट होने के बाद वह स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब्ड होकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होता है, विली उसको एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से वो उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजता है. अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड भोजन को, आप कार्बोहाइड्रेट अगर खाए हैं तो उसका डाइजेस्टेड फॉर्म है ग्लूकोज. अगर आपने प्रोटीन खाया है उसका डाइजेस्टेड फॉर्म है एमिनो एसिड. अगर आपने फैट्स खाया है तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल प्रेजेंट है ब्लड में, डाइजेस्टेड पार्ट है. ये सभी फ्लो होते हुए ब्लड चूँकि शरीर के ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुँचता है, उससे ब्लड से होते हुए ये सभी भोजन जो हैं वो पहुँचते हैं आपके ईच एंड एवरी सेल में. सेल में पहुंचने के बाद सेल के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. वो उस भोजन को ब्रेक डाउन करता है और अल्टीमेटली उससे एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब आप सोचिए, देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी. ईच एंड एवरी सेल हैज़ दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनल विच will break down the food to release energy. By breaking one molecule of glucose, we are getting 36 ATP of energy, and this all energy are accumulated. That's why we are able to do any kind of work. Now you come to know, हम सभी जितने भी काम करते हैं, चाहे कोई भी यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, जो भी काम करते हैं उसको जो एनर्जी चाहिए वो सेल के अंदर का एक ऑर्गेनल देता है या बनाता है, ब्रेक डाउन करके, फूड को ब्रेक डाउन करके. अब उम्मीद करते हैं कि आप गेस कर चुके होंगे कौन सा ऐसा सेलुलर ऑर्गेनल है जो एक्चुअल में एनर्जी को ब्रेक करता है. आप गेस कर सकते हैं? रियली दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. दिस पॉइंट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 9, the chapter is fundamental unit of life, that is cell. It is also important for class 10 because in class 10 you will study the respiration and it is the site of respiration. So here we must remember this is the site of aerobic respiration. Aerobic respiration in cell. In cell, that means both cell, plant cell as well as animal cell. In both kind of cell, aerobic respiration. Here I can write here plant as well as animal. Both kind of cell, aerobic respiration is going on inside mitochondria. Second thing, it is also known as the powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. Now you can recapitulate why it is called powerhouse of the cell. It is called powerhouse because it generates energy. Now if anyone will ask you that how it generate energy, then you can say by the aerobic respiration.
Aerobic respiration, you know, one aerobic respiration undergoes Krebs cycle. So Krebs cycle is the actual process by which it releases energy. Now slowly how we should understand, we will come to know each and everything regarding this mitochondria. The first thing goes, माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में दुनिया को कैसे पता चला। ये पहली बात है, जब हमें सेल ही नहीं दिखता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखेगा, समस्या ये है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक, जब आप किसी चीज़ पे मन लगा करके पढ़ जाते हैं तो वो चीज़ें संभव हो जाती हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। आप बिल्कुल हर कुछ को अचीव कर सकते हैं, बस आपको ध्यान से करना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का भी शुरुआती दौर में कोई जानकारी नहीं था, यहाँ तो सेल ही नहीं दिख रहा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से पढ़ते। लेकिन लोगों को, वैज्ञानिकों को ये अंदाज़ा था कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से एनर्जी मिलता है। रेस्पिरेशन की खोज शुरू हुई तो कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक ने, सबसे पहले कॉलिकर ने 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। किस में देखा भाई, तो स्ट्रिएटेड मसल्स में, स्ट्रिएटेड मसल्स में देखा। अब ये स्ट्रिएटेड मसल्स क्या है आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर आप क्लास 9 में है तो टिश्यू चैप्टर में पढ़ लेंगे। स्ट्रिएटेड मसल्स जो है, एक्चुअली मसल्स जो है वो 3 तरह का होता है हमारे शरीर में। पहला मसल जिसको आप स्ट्रिएटेड मसल्स कहेंगे, ये वॉल्यूंटरी होता है। वॉल्यूंटरी दैट मीन्स अगर हम अपनी उंगलियों को मूव कर रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप टच करके देखिए, यहाँ पर भी मसल्स है, ये आपको मूव करता हुआ दिखेगा। आप तो उंगलियों को देख रहे हैं ना, लेकिन इंटरनली उंगलियों को मूव करने से पहले ये मूव हो रहा है। आपको लगता होगा कि आप उंगली मूव कर रहे हैं तो ये मूव हो रहा है, नहीं, ये पहले मूव हो रहा है और इसकी वजह से उंगलियां मूव कर रही हैं। तो ये जो मसल्स है जिसको हम अपनी इच्छा शक्ति पे, अपने विल के आधार पे मूव कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। अंदरूनी जो मसल्स हैं जो विसरल ऑर्गन में है, जैसे अंदर के स्टोमक में है, किडनी में है, वहाँ भी मसल्स है। ये मसल्स स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। 2 मसल्स हो गया, स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल। तीसरा मसल जो थोड़ा अलग तरह का है, जो जीवन पर्यंत बचपन से लेकर के मौत तक जो चलता है, दैट इज़ कार्डियक मसल्स, वो हार्ट में मिलता है। तो स्ट्रिएटेड मसल्स में कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। हम डिस्कवर कह सकते हैं, ये डिस्कवरर हैं, इन्होंने सबसे पहले इसके विषय में अंदाज़ा लगाया। लेकिन उन्होंने इनका स्टडी शुरू किया। बाद में, इसके बाद लगभग 47 ईयर्स के बाद वैज्ञानिकों ने इनका नाम रखना शुरू किया। एक वैज्ञानिक का नाम आया सी बेंडा। इन्होंने 1897 में इसका नाम रखा, नेम्ड दिस ऑर्गेनल एज माइटोकॉन्ड्रिया। इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। अब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में आप कुछ जान चुके हैं, एक बार इसको रिकैपिचुलेट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसको याद रख लेना है, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, उसको आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। पहले ग्लूकोज जो है किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में उसका ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस लगभग 10-11 स्टेप्स का प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस के बाद ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, तब उसमें क्रेब्स साइकिल होता है। तो चलिए अभी हम लोग फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए डायरेक्ट हम कह रहे हैं कि ये क्रेब्स साइकिल से एनर्जी को रिलीज करता है। तो प्रोसेस का नाम क्रेब्स साइकिल है। ये एयरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इस प्रोसेस को करने के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कॉलिकर ने इसको डिस्कवर किया, सी बेंडा ने इसका नाम रखा। अब हम लोग बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया लगता कैसा है, दिखता कैसा है, इसको समझते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का अगर शेप देखा जाए तो सबसे पहले एक आप यूं अंडाकार सर्कल बना दीजिए, इलिप्टिकल, इट इज़ नॉट सर्कल,
एलिप्टिकल शेप में इस ढंग से बना दिया हमने। ये जो नीचे का डायग्राम बनाया है वो एक्चुअली इसको 3D इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए ये आउटर जो पार्ट है, जो आउटर बाउंड्री हमने बनाया, इसको हम लोग कह देंगे आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, नाम को अगर आप क्लास 9 में है तो नाम ध्यान रखिए, क्लास 11 में है तो हम लोग क्रेब्स साइकिल पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम पर ध्यान देंगे, लेकिन 9th में इसके नाम को, इसके काम को 2 चीज़ें ज़रूर जान लेना है। पहला ऑकरेंस भी जान लीजिए, कहाँ ये पाया जाता है, कहाँ किस सेल्स में ये नहीं है, अभी बताएंगे हम। दूसरी बात हम ये बताएंगे कि इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नाम क्या हैं, और तीसरी बात हम बताएंगे इसका काम क्या है। ये क्लास 9th के लेवल पे होगा। क्लास 11th के लेवल पे आपको हम बताएंगे क्रेब्स साइकिल के लिए यहाँ क्या फैसिलिटीज़ है, क्यों यही ऐसा ऑर्गन है जो क्रेब्स साइकिल को करके एनर्जी रिलीज़ करता है, क्यों दूसरे कोई ऑर्गेनल नहीं कर पाते हैं। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ। इसके अंदर जो है यह इस तरीके से इसका इनर मेम्ब्रेन जो होगा वह इनसाइड फोल्डेड होगा। इनर मेम्ब्रेन जो है वह इंटरनली इस ढंग से फोल्डेड है। ठीक है, तो इसको ये सेकंड हमने नाम दिया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो चैम्बर है, जो खाली जगह आपको मिल रहा है, अब इसका नाम रख सकते हैं आउटर चैम्बर। तो अगर इसका हमने आउटर चैम्बर नाम रखा है तो इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी होगा, दैट इज इनर चैम्बर। अब देखिए ये 4 नाम जो है वह यूं ही याद हो जा रहा है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर, इनर मेम्ब्रेन, इनर चैम्बर। चलिए 4 बातें याद हो गई। अब इनर मेम्ब्रेन के जो ये फिंगर लाइक इस तरीके से जो अंदर की तरफ फोल्ड हुआ स्ट्रक्चर है, इसको अगर सिंगुलर कहा जाए तो ये है क्रिस्टा, CRISTA। लेकिन अगर प्लूरल कहा जाए तो हम इसमें ए को हटाकर ए के साथ ई लगा देंगे, तो ये प्लूरल हो गया। हम तो यहाँ एक को रिप्रेजेंट किए हैं ना, ये पूरा अंदर तक का पार्ट। क्रिस्टी में ढेर सारे क्रिस्टी आपको दिख रहे हैं, है ना। इसके बाद हर एक क्रिस्टी पे इस ढंग से सेल इस तरह के स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। अब कहेंगे ये क्या, यही तो मेन चीज़ है। इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजोम्स। ये ऑक्सीजोम्स को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक फर्नांडेज मोरेन थे, इसलिए इसका एक और नाम आ जाता है सब यूनिट्स ऑफ फर्नांडेज मोरेन। अच्छा, इसी चीज़ को F1 पार्टिकल भी कहते हैं। तो अब क्या है, 3 नाम आ गया, यही मेन चीज़ है। अभी इसी पर आप क्लास 11 में क्रेब्स साइकिल को पढ़ेंगे, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। देखिए पूरा जो इनर चैम्बर है वो एक फ्लूइड से भरा हुआ है। ऑफ कोर्स ज़्यादातर जो भी आप सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे सबके अंदर फ्लूइड है, लेकिन उसका नाम डिफरेंट आपको देना है। इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड का नाम हम लोग देंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपको 2 चीज़ें स्पेशली याद रखना है। कौन सी 2 चीज़ें होती हैं, क्यों स्पेशल याद किया जाएगा वो भी बता रहे हैं, और कौन सी 2 चीज़ें हैं वो भी बता रहे हैं। ये देखिए, ये 2 चीज़ें, ये क्या है भाई, ये राइबोसोम है। राइबोसोम आपको याद होगा, राइबोसोम इज़ नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। इसका मेन काम होता है ये ट्रांसलेशन के टाइम में, ट्रांसलेशन भी दिक्कत है उसको समझ लीजिए। जब आप क्लास 12 में जाएंगे, जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो जेनेटिक्स में आपको सेंट्रल डॉग्मा बताया जाएगा। उस सेंट्रल डॉग्मा में आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन में क्या होता है, mRNA जो है वो एमिनो एसिड बनाता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के टाइम में ये राइबोसोम काफ़ी मदद करता है। ये राइबोसोम चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, यहाँ पर इसका टाइप 70S याद रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं करना है। 70S टाइप जो है जनरली प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, लेकिन यहाँ 70S ये माइटोकॉन्ड्रिया, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम मिल रहा है वो 70S टाइप का है। दूसरा, ये सिंगल DNA है, ये सिंगल सर्कुलर भी आप कह सकते हैं, सिंगल सर्कुलर DNA, ये DNA है।
अब क्या है, इन दोनों की वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया और भी स्पेशल बन जाता है। ये क्या है, राइबोसोम मतलब अपना प्रोटीन मशीनरी, डीएनए मतलब अपना जेनेटिक मशीनरी। तो डीएनए, आप जान रहे डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए और आरएनए ये राइबोसोम की वजह से ही इसको ऑटोनोमस बॉडी भी कहा जाता है। इट इज़ एन ऑटोनोमस। अब ये ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है भाई, तो ऑटोनोमस वैसे यूनिट को कहा जा सकता है जो अपने मैक्सिमम वर्क को खुद हैंडल कर सकता है। देखिए, जिसके पास अपना डीएनए हो वो अपने तरीके से कोई भी काम को कर सकता है। डीएनए क्या है, वो कंट्रोलर है। तो डीएनए जिसके पास अपना हो वो ऑटोनोमस हो गया, वो अपना सब काम कर सकता है। डीएनए को रेप्लिकेट कर सकता है, अपने हिसाब से डीएनए से आरएनए बना सकता है, अपने हिसाब से वो प्रोटीन बना सकता है, बहुत सारी बातें। तो इन दोनों की वजह से ऑटोनोमस यूनिट कहा जाता है। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर हुआ। फिर से एक बार समझ लीजिए, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर, इनर मेम्ब्रेन, इनर चैम्बर। इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होता है, फोल्ड से क्रिस्टी बनता है। क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीजोम्स होते हैं जिसके 3 नाम हम बताए, सब यूनिट्स ऑफ फर्नांडिस मोरेन है ये। F1 पार्टिकल, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ ये राइबोसोम्स है, ये सिंगल सर्कुलर डीएनए। चलिए, ये स्ट्रक्चर हुआ। इसका जो फुल शेप आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कैसा है शेप, ये सॉसेज की तरह है। अब ये सॉसेज क्या होता है भाई, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आप भी समझ सकते हैं। सॉसेज मतलब एक समझ लीजिए बैलून की तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ बात आती है ऑकरेंस पे। अगर आप क्लास 9 में है तो 3 बात को आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पाया जाता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसका क्या फंक्शन है। स्ट्रक्चर में हमने आपको बता दिया। ऑकरेंस कहाँ मिलता है, जनरली सेल में मिलता है। प्रोकैरियोट में मिलेगा क्या, नहीं, प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा है कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में नहीं, प्रोकैरियोट में फुल एब्सेंट। जितने भी प्रोकैरियोट आप पढ़ते हैं सब में ये एब्सेंट है। फिर यूकैरियोट में ये है तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है, यूकैरियोट्स में मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी यूकैरियोट्स हैं जिसमें ये नहीं मिलेगा। किस में नहीं मिलेगा भाई, जैसे आरबीसी में ये नहीं मिलेगा। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, उसमें नहीं मिलेगा। कॉर्निया, आपकी आंखों में कॉर्निया है, अब जहाँ ब्लैक वाला पार्ट है ना उसके आगे एक लेंस की तरह का स्ट्रक्चर है, वो कॉर्निया में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आई लेंस जो आपके पास है आंखों से जिससे आप देख पाते हैं, कनकेव लेंस, सॉरी बाई कन्वेक्स लेंस है प्रोटीन का बना हुआ, उसमें भी ये नहीं मिलता है। अच्छा, दूसरी बात हो गई कितने माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में प्रेजेंट होंगे। तो नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो लगभग 15,000 से लेकर के 1,50,000 तक एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। आप सोच सकते हैं कितना छोटा है, एक सेल को आप नहीं देख पा रहे हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो भी 14-15 हज़ार से लेकर 1,50,000 तक है। तो ये काफ़ी छोटा है, लेकिन है तो इम्पॉर्टेंट, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्रिब्स, अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजोम्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस। चलिए, क्लास 9 की बातें यहाँ तक ठीक है, क्लास 9 में इतना पढ़ करके हम लोग खुश रह सकते हैं। क्लास 11 की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ ये समझना है कि इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा क्या है कि ये एनर्जी दे पाता है। तो आपको पता चलेगा सबसे छोटा, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये क्या है, ये ऑक्सीजोम्स है। ऑक्सीजोम्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम है, बहुत सारे मतलब कितने, टोटल क्रेब्स साइकिल 8 स्टेप का प्रोसेस है ये। इसके लिए हम क्रेब्स साइकिल का अलग वीडियो बता देंगे, लेकिन क्रेब्स साइकिल के 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स में 8 डिफरेंट एंजाइम्स का यूज़ होता है। ये सभी एंजाइम ये ऑक्सीजोम्स पर प्रेजेंट हैं। अब कौन कौन से एंजाइम है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं कौन कौन से एंजाइम है। हम यहाँ बीच में लिख देते हैं, लगभग ये टॉपिक आप समझ चुके हैं। अब बीच में देखिए इसमें कौन कौन से एंजाइम है। पहला एंजाइम आपको मिलेगा साइट्रेट सिंथेटेज। अब आप कहेंगे सर ये सब क्या है, तो भाई जब आप 11 में पहुँचेंगे या आप 11 में होंगे, तो अगर आप 11 में हैं तो जब क्रेब्स साइकिल पढ़ाएंगे तो एक एक स्टेप करके आप समझ सकते हैं। क्रेब्स साइकिल पढ़ाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है।
तो कॉम्प्लिकेटेड को जब आपको समझना होगा तो स्टेप वाइज याद करिए। आज आप इसके एंजाइम्स को पढ़ लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में जब हम वीडियो बनाएंगे क्रेब्स साइकिल का तो हम आपको स्टेप पढ़ा देंगे। ओके, ख़त्म। छोटी सी बात को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड एंजाइम है एकोनिटेज, थर्ड एंजाइम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, चौथा एंजाइम है अल्फा कीटो गैलेक्टोज गैलेक्ट्रेट है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। पांचवा एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। छठा एंजाइम है फ्यूमरेज। सातवां एंजाइम हो गया मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। सात एंजाइम है, चलिए एक मुझे याद नहीं आ रहा है, तो 7 एंजाइम है, 7 एंजाइम्स। ये सब कहाँ मिलेंगे? ये छोटा वाला पार्ट में। दैट मीन्स ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। पूरी दुनिया को एनर्जी देने वाला बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल मशीनरी, बायोलॉजिकल एंजाइमेटिक मशीनरी कहाँ है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इसी ऑक्सीजोम्स में। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में भी प्रश्न आना चाहिए कि एक्चुअल में अगर यूकैरियोट्स के अंदर ये है एनर्जी देने के लिए, तो फिर प्रोकैरियोट के अंदर क्या होगा? प्रोकैरियोट के अंदर एक इसी से मिलता जुलता काम करने वाला, मतलब एनालॉगस, एनालॉगस वर्ड याद रखिएगा। एनालॉगस वैसे ऑर्गेनल, वैसे पार्ट को कह सकते हैं जो सेम वर्क करता है, भले स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो, है ना। तो एनालॉगस होता है, उसका नाम होता है मीजोजोम। तो इसका जो प्रोकैरियोटिक्स भाई है, प्रोकैरियोटिक एनालॉग जो है वो है मीजोजोम्स, प्रोकैरियोटिक एनालॉग। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगले वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे क्लास 11 की। थैंक यू।